Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our another course which is biopharmaceutics and pharmacokinetics, course number 611, and this course is applicable to fourth year pharmacy, first semester, means fourth year first semester. Now let us start with the first chapter of Introduction to Biopharmaceutics and Pharmacodynamics, which is a chapter 1, and the title of the book from where the lecture has been made is Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics by Leon Churchill, edition number 7. So let us start. First of all, we should discuss about the drug product performance. We know that there are the drugs which we make for the patients, and the drug products are also called the dosage form, drug delivery systems, and they are designed by keeping the center or the mainly with the keeping a center point with the patient. Now what are the dosage forms? Dosage forms may be solid dosage form like tablets and capsules, semi-solid like ointments and cream. We may have liquid preparations like solutions, suspensions, emulsions. They are also called drug delivery system because they release the drug and deliver the drug to the site of action for desired therapeutic effect. Like for example, if we are making the tablet is a dosage form. Once it reaches to the stomach, it should disintegrate and release the drug, and the drug should absorb, and with the help of blood circulation it should reach to the site of action and produce desired therapeutic effect. That is why drug is releasing and delivering to the site of action. Therefore, this drug product is also called drug delivery system. So drug delivery system is also their drug product performance is also depending upon their delivery system. Patient centered design. We also design the dosage form based upon the patient. Patient must meets the patient needs, including palatability, convenience, and safety. Palatability means its appearance, its color, its smell, odor, its taste. It should be acceptable. Convenient means that कि अगर पेशेंट जो है वो दिन में 3 दफ़ा ड्रग ले रहा है, अगर हम उसको एक सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर दें और उसको दिन में 1 दफ़ा लेनी पड़े तो वो 3 दफ़ा में अक्सर भूल जाता है, बीच में कोई डोज मिस कर देता है. तो दैट इज़ वाई इन दिस सिचुएशन दिस ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, और this will reduce the side effects as well as increases the efficacy and increase the compliance, and of course the safety will also improve. Why these drug products are prepared? These drug products or the drug substances are intended for use. किस लिए बनाए जाते हैं और कहाँ यूज़ किए जाते हैं? For the diagnosis of disease like iodine 131 जो कि एक डायग्नोस्टिक सब्सटेंस है, डायग्नोस्टिक ड्रग है, थायराइड फंक्शनिंग डिटरमिन करने के लिए यूज़ की जाती है. क्योर ऑफ द डिजीज़ लाइक एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ होती हैं. मिटिगेशन ऑफ डिजीज़ यानी वो डिजीज़ जो कि ना क्योर हो सकती हैं, ना ट्रीट हो सकती हैं, ना उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ठीक है उसको मिटिगेट किया जाए. मिटिगेट मीन्स उनकी सीरियसनेस को मिनिमाइज़ किया जाए. मिटिगेट किया जाए यानी मिनिमाइज़ किया जाए. एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसकी कोई क्योर नहीं है, और हाँ हम उसको मिटिगेट के अलावा कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में रख सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रिवेंशन और द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज़ के लिए लाइक फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स हम प्रिपेयर करते हैं. तो वैक्सीन्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड and they should also come under the drug, and their performance is also important. Drug products serve as delivery system, जैसा कि हमने अभी बात की, that release and deliver medication to produce therapeutic effect while meeting the patient needs. ना सिर्फ ये कि जो है वो ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, पेशेंट की नीड को पूरा करते हैं, बल्कि ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज़ बायोफार्मास्यूटिक्स? अब हम आते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स पे बात करते हैं. बायोफार्मास्यूटिक्स एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग. तो बायोफार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि जो भी हम ड्रग बनाने जा रहे हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है.
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका अगर लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलाउ करती हैं कि ये जो केमिकल हम ले रहे हैं क्या ये ड्रग बन सकता है? अगर वो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतर जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्वालिफाई हो गई। फिर हम देन वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग? मे बी दिस केमिकल इंटरेक्ट विद द बॉडी केमिकल्स, बॉडी केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनके साथ, तो फिर तो ये ड्रग नहीं बन सकता। हो सकता है वो बॉडी की केमिकल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे, कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स दे, या ड्रग का रिस्पॉन्स ना आए, तो फिर तो इसको ड्रग बनाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सूटेबल टू मेक ए ड्रग प्रोडक्ट, तो फिर हम इसको, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्वालिफाई हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्वालिफाई हो गई, यानी ये दो चीज़ें तो क्वालिफाई हो गई बायोफार्मास्यूटिक्स के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद आता है द डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग इज़ टू बी गिवन। ये किस फॉर्म में ड्रग दी जाएगी, डोजेज फॉर्म क्या बनाएंगे इसकी, यानी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब क्वालिफाई कर रही हैं तो इसको हम किस डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड डोजेज फॉर्म में, टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में, या लिक्विड प्रिपरेशंस में, या एरोसोल प्रिपरेशन में, गैस प्रिपरेशन में जो कि पल्मोनरी इनहेलर डिवाइसेस के ज़रिए यूज़ की जाती हैं, तो या पेरेंटल प्रिपरेशन है। क्योंकि देखिए हर ड्रग जो है ना वो सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं बन सकती, हर ड्रग जो है वो पेरेंटल डोजेज फॉर्म नहीं बन सकती। तो इसकी डोजेज फॉर्म, यानी ये किस तरह से इसकी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर की जा सकती है, उसकी साइंस क्या होगी, कैसे वो स्टेबल होगी कि वो फिजिकली भी मेंटेन रहे, केमिकली भी मेंटेन रहे, और डोजेज फॉर्म भी उसकी जो है वो शेल्फ लाइफ जो उसकी है उसमें वो मेंटेन रहे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको हम फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई बायोफार्मास्यूटिक्स की। फोर्थ इज़ द बायोलॉजी, कि बाय विच बायोलॉजिकल रूट वी विल एडमिनिस्टर द ड्रग, लाइक इंजेक्टेबल है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आई इन के ज़रिए जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, या सपोजिटरी है जैसे रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाय विच रूट, तो जिस रूट से भी जो है क्या वो एप्लीकेबल है, दैट रूट कैन स्टेबलाइज द ड्रग एंड डिलीवर द ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये यानी बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया ये, क्योंकि जो भी रूट है वो बायोलॉजिकल रूट्स हैं, तो उन रूट्स में से कौन से रूट से जो है वो ये ड्रग दी जा सकती है। तो ये चौथा फैक्टर आ गया कि वो किस बायोलॉजिकल पैरामीटर को क्वालिफाई करके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाई जा सकती है ड्रग। तो ये चार चीज़ें मिलके बायोफार्मास्यूटिक्स बनाती है। ये चारों चीज़ें मिलती हैं और अगर ये क्वालिफाई कर रही हैं तो देन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन विल बी ओके। एक्सेप्टेबल मींस ड्रग जो है वो एक सर्टेन रेट से, टाइम से एब्जॉर्ब भी होगी और एक सर्टेन क्वांटिटी में यानी एक्सटेंट में एब्जॉर्ब भी होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल भी होगी और साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच भी जाएगी। तो इस तरह से ड्रग जो होगी वो फिर अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दे सकेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन हो, कि वो ड्रग जो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्वालिफाई करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्वालिफाई करें, फार्मूलेशन फैक्टर्स क्वालिफाई करें, यानी डोजेज फॉर्म जो भी बना रहे हैं हम, और फिर वो जिस बायोलॉजिकल रूट से दी जा रही है उससे पास होके बगैर विदाउट डिग्रेडेशन से सही रेट से एब्जॉर्ब हो, सही एक्सटेंट में एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच सके। तो ये जो सब्जेक्ट है दैट कवर्स बायोफार्मास्यूटिक्स। The importance of drug substance and the drug formulation on absorption and in vivo distribution of drug to the site of action is described as sequence of event that precedes elicitation of drugs therapeutic effect। अगर इसी तरीके से फॉर्मूलेशन जो है वो प्रिपेयर कर ली गई, ड्रग सब्सटेंस को एक फॉर्मूलेशन में तैयार कर लिया गया, वो एब्जॉर्ब हो गई, इन वीवो यानी बॉडी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच भी गई, तो वो फिर जो है वो अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकेगी। सो इन समरी देयर आर 4 फैक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की क्वालिफाई होनी चाहिए, डोजेज फॉर्म यानी फॉर्मूलेशन डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिलीवरी रूट, किस रूट से डिलीवरी पाथवे, और रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये तमाम चीज़ें मिलके बायोफार्मास्यूटिक्स को क्वालिफाई करेंगी। नाउ द नेक्स्ट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक, द साइंस ऑफ ड्रग मूवमेंट का, क्योंकि काइनेटिक का मूवमेंट भी, काइनेटिक की मीनिंग भी क्या होते हैं, मूवमेंट। After a drug is released from its dosage form, the drug is absorbed into the surrounding tissue and the body or both।
तो जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो अपने सराउंडिंग टिश्यू में ब्लड के ज़रिए पहुंचती है और डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है. द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू and elimination of a drug in body varies for each patient but can be characterized using mathematical models and statistics. अब ये जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है और एलिमिनेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इस पर हम मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगाएंगे, जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम उसको एस्टिमेट करेंगे कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन कंप्लीटली उस तरह से हो रही है या नहीं हो रही है जैसा कि होना चाहिए. हमने जैसे बात भी की थी कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. ड्रग एंटर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिपेंड थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू जिसमें जा रही है, मेटाबॉलिज्म हो गया, केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन और फिर एक्सक्रीशन, ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इज़ द साइंस ऑफ काइनेटिक ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, distribution and elimination. The description of drug distribution and elimination is often termed drug disposition, और इसको हम ड्रग डिस्पोजिशन भी कहते हैं. ड्रग डिस्पोजिशन क्या है? ड्रग डिस्पोजिशन ये है जिसमें ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन कंबाइंडली होती है. कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर डिटर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डोजिंग रेजिमेन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स. और जो भी आप ये ड्रग की डिस्पोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट किस लिए? ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें या मॉडिफाई कर सकें कि किस पेशेंट को क्या डोजिंग रेजिमेन देनी है, यानी कितनी डोज में ड्रग देनी है और किस फ्रीक्वेंसी से देनी है. फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एंड इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स. हम जो बायोलॉजिकल सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के क्योंकि देखें जब हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ये होगी कि हमें ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, ब्लड में कितनी है या साइट ऑफ एक्शन पे कितनी है, तो फिर वहाँ से हम ब्लड सैंपल या बायोलॉजिकल सैंपल या वो फ्लूइड लाइक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो ऑब्टेन करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि ड्रग कितनी है. कैसे चेक करेंगे? एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करेंगे फॉर ड्रग एंड मेटाबोलाइट मेजरमेंट. फिर उससे डेटा कलेक्शन होगी एंड मैनिपुलेशन प्रोसीजर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स जो कि हाइपोथेसिस के बेस पे होंगे. प्रिडिक्शन ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन, उसकी बेस पे, कैलकुलेशन की बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये ड्रग है, इसकी हाफ लाइफ इतनी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगी, फिर एलिमिनेट ऐसे होगी. एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर पैरामीटर एस्टिमेशन, ताकि हम ये एस्टिमेट भी कर सकें कि ओवरऑल पॉपुलेशन में ड्रग का बिहेवियर कैसा होगा. सो द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़. लिहाजा फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स जो होगी वो इंटीग्रल पार्ट के तौर पे कंट्रीब्यूट कर रही होगी. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है. स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज फॉर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एस्टिमेशन and data interpretation and ultimately for the purpose of designing and predicting optimal dosing regimen for individual or group of patients. तो इस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को जब हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे तो फिर हम वी विल बी एबल टू डिज़ाइन एंड प्रिडिक्ट ऑप्टिमल डोजिंग रेजिमेन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के में क्या ऑप्टिमम डोजिंग रेजिमेन होगा. Statistical methods are applied to pharmacokinetic models to determine data error. Data error भी हमें पता चल जाएगा and structural model deviation, जो अगर कोई deviation आ रही होगी डेटा में तो वो भी हमें पता चल जाएगी. like we use standard deviation और error अगर कोई डेटा में आ रहा होगा तो वो भी हमें identify हो जाएगा. Next is the pharmacodynamic, means drug effect on the body. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन. ड्रग इंटरैक्ट क्वांटिटेटिवली विद स्पेसिफिक रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. ड्रग जो होती है वही, जैसे अगर कोई बीटा ब्लॉकर है वो बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगी और फिर अपना वो बाइंड होने के बाद वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी जो कि उसको करना चाहिए. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे जिसकी बेस पे, लाइक फॉर एग्जांपल जब बीटा ब्लॉकर बाइंड हुई तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम बायोकेमिकल एक्टिवेट हुए और फिर ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो गया. कंसंट्रेशन इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स, मीन्स के ज़्यादा डोज देंगे तो ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है, एक्सेसिव आ सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है. कम डोज देंगे तो फिर वो ड्रग का इफेक्ट रिड्यूस भी हो सकता है. फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी
ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। तो फार्माकोडायनेमिक क्या है कि ये वो स्टडी है जिसमें ड्रग का जो इफेक्ट है वो बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली बॉडी पे किस तरह से आ रहा है। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर द मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। तो ये रिसेप्टर्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ड्रग के साथ बाइंड होंगे और फार्माकोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट कैन बी थेराप्यूटिक और मे कॉज टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी जो ये एक्सेसिव डोज में अगर होगा तो टॉक्सिसिटी होगी, और अगर ऑप्टिमम डोज में होगा तो फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स? क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? क्लिनिकल, देखिए, क्लिनिकल मीन्स और द क्लिनिकल वर्ड पर्टेनिंग टू द पेशेंट, वो चीज़ जो कि पेशेंट से रिलेटेड हो उसको हम क्लिनिकल कहते हैं। तो अब वही फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स व्हेन वी आर अप्लाइंग इन क्लिनिकल सिचुएशन टू द पेशेंट, दैन दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। अच्छा, अब अगर हम इस पे बात करें तो ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स आर एनरोल इन क्लिनिकल ट्रायल टू डिटरमिन द एफिकेसी एंड ऑप्टिमम डोजिंग रेजिमेन। जब ड्रग डेवलप की जा रही होती है, जब ह्यूमन ट्रायल किए जा रहे होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो उस दौरान जो है वो ये डिटरमिन कर लिया जाता है कि ये इस ड्रग की ऑप्टिमम डोज क्या होगी, इफेक्टिव डोज क्या होगी और डोजिंग रेजिमेन क्या होगा, यानी कितनी डोज में दें और किस इंटरवल से दें, कि मीन्स एवरी 6 आवर या एवरी 12 आवर या वंस डेली या वंस वीकली, वो उस वक्त पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? द FDA यानी रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव ए लेवल दैट रिकमेंड प्रॉपर स्टार्टिंग डोजेज रेजिमेन फॉर द जनरल पेशेंट पॉपुलेशन एंड मे हैव एडिशनल रिकमेंडेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन दैट नीड एडजस्टेड डोजेज रेजिमेन। तो FDA उसको फिर लेवल पे जो उसका लीफलेट होगा उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी इस इन क्लिनिकल ट्रायल्स की बेस पे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की बेस पे, कि जनरल पॉपुलेशन में इस ड्रग की जो डोज होगी वो क्या होगी, किस फ्रीक्वेंसी से हम दे सकते हैं, और अगर कोई स्पेशल पॉपुलेशन है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। लाइक अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है और ड्रग एलिमिनेट होती है किडनी से, तो फिर हमें वो ड्रग देनी है या नहीं देनी है, और अगर देनी है तो कितनी देनी है, कितनी डोज रिड्यूस करके देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लीफलेट में उस क्लिनिकल ट्रायल की मौजूदगी की इन्फॉर्मेशन की बेस पे होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्टडीज़ होती हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक, आम तौर पे जो स्टडीज़ होती हैं वो बहुत हो गया तो 10,000 पेशेंट्स पर होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज़ मोर देन 7 बिलियन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जब ये न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं तो ये फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 प्रोसेस से गुजरती हैं। अब जब ये इन तीनों फेजेस से गुजरती हैं तो फिर क्या होता है कि फिर ये ड्रग्स जो होती हैं जब इन पेशेंट्स 10,000 पेशेंट्स पर जो है वो ट्राई की जाती हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो तमाम जो इस वक्त ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों, यानी 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है उसका जो है वो 10,000 अगर सैम्पल साइज़ लिया था स्टडी में, तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो ग्लोबल पॉपुलेशन की, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी रेसेस हैं, एथनिक ग्रुप हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस क्लिनिकल ट्रायल में सब के सब मौजूद हों। और उसी वजह से क्या होता है कि क्योंकि एथनिक डिफरेंसेस होते हैं, रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म में, फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप अपनी क्लास को ही देख लें तो आपकी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो सबकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी, और इसी वजह से सब में किसी भी ड्रग का, एक ही ड्रग देंगे सबको अगर और एक ही डोज में देंगे तो सब में उस ड्रग का बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से जो ये क्लिनिकल ट्रायल होते हैं इसमें जो स्टडीज़ की जाती हैं उसकी बुनियाद पर एक जनरल गाइडलाइन तो डेवलप कर ली जाती है कि ये ड्रग इस डोज में यूज़ की जाएगी, इतनी डोज बढ़ाई जा सकती है, इतनी कम की जा सकती है, बट इन सम सिचुएशन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, कि आपने नॉर्म वही पे डोज दी जो कि उसके लीफलेट में लिखी हुई थी, जो कि FDA ने या ड्रैप ने पाकिस्तान में अप्रूव की हुई थी, और उससे उसको या तो फ़ायदा हो नहीं रहा तो फिर आपने डोज़ बढ़ा के दी, या उसको उसी नॉर्मल डोज पे टॉक्सिसिटी आ रही है तो फिर आपको डोज कम करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी और ड्रग मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, तो उसके लिए जो डोज होगी वो अलग होगी। तो उस सिचुएशन में फिर आपका रोल एज ए फार्माकोकाइनेटिक स्पेशलिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू, यू विल individualize the dosing regimen.
So that is why this is called multidisciplinary approach to optimize dosing strategies based on the patient's डिजीज स्टेट एंड स्पेसिफिक कंसिड्रेशन। तो उस पेशेंट की कंसिड्रेशन को सामने रखते हुए कि इस पेशेंट के लिए ऑप्टिमम डोज क्या होगी, इसके लिए जिससे इसको थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल जाए विदाउट हैविंग एनी टॉक्सिसिटी और सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इस वजह से जो है वो आपको इंडिविजुअलाइज डोजिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक्सटेंसिव जो कैलकुलेशंस हैं वो करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस सिचुएशन पर आएंगे कि आप बिल्कुल करेक्ट डोज जो होगी वो उसको दे सकते होंगे। इसकी डिटेल हम काफ़ी बाद में जो चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे उसमें काफ़ी डिटेल में हम इसको करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। वेरिएबिलिटी मैनेजमेंट, इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन में रिजल्ट इन सब थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड डोजेज एडजस्टमेंट। जैसा हमने बात की कि पेशेंट्स के दरमियान में या डिफरेंट पेशेंट्स में जो वेरिएशन है जिसकी वजह से ड्रग का या तो सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट है यानी ये रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, या फिर टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर आपको डोजेज एडजस्टमेंट उस पेशेंट की करनी पड़ेगी, यानी एज ए फार्मासिस्ट आपका रोल इंपॉर्टेंट वहाँ पर हो जाएगा। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आमतौर पे हम करते हैं। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम उन ड्रग की करते हैं वो ड्रग जो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रखती हैं, लाइक वारफेरिन हो गई, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, और इसके अलावा ये कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हो गई, ये जो है वो इनकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो गई। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जिनकी मिनिमम इफेक्टिव डोज और मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, यानी थोड़ी सी डोज बढ़ाएं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, थोड़ी सी डोज करें तो सब थेराप्यूटिक हो जाएगी, मींस कि देयर इज़ नो क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो आपको बहुत ही एहतियात से इसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, डोजिंग रेजिमेन एडजस्ट करना पड़ता है कि ड्रग जो हो वो ना सब थेरेप्यूटिक कंडीशन में जाए और ना टॉक्सिक में जाए, और पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ता है कि जो है किसी वक्त पेशेंट जो है वो ऐसी सिचुएशन में ना जाए कि जिस वक्त ड्रग का रिस्पॉन्स या तो नहीं आ रहा या अगर आ रहा है तो वो पोटेंट ड्रग होने की वजह से, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होने की वजह से टॉक्सिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बजाय पेशेंट को फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया। तो इसलिए जो है ये थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक इज अप्लाइड टू थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो इसी वजह से TDM यानी क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक को वहाँ पे अप्लाई की जाता है किन ड्रग पे? फॉर वेरी पोटेंट ड्रग विथ नैरो थेरेप्यूटिक रेंज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज एफिकेसी, ताकि एफिकेसी को ऑप्टिमाइज किया जाए एंड प्रिवेंट एडवर्स टॉक्सिसिटी। फॉर दीज ड्रग्स इट इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर द पेशेंट को जैसे मैंने बात की कि मुसलसल मॉनिटर करना है आपने, आइदर बाय मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल थियोफाइलिन, यानी या तो प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन चेक करें लाइक थियोफाइलिन, इसका वो लेवल है जो इसके सेफ रेंज में आता है, उस रेंज में मौजूद है या नहीं है, या फिर और बाय मॉनिटरिंग ए स्पेसिफिक फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट सच एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, फॉर एग्जांपल वारफेरिन। तो वो तो स्किन के ज़रिए ही किया जा सकता है, क्लॉटिंग टाइम के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं, PT टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ज़रिए कि जो है वो बिल्कुल वारफेरिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल रेंज में है नहीं, अगर कम है तो वारफेरिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ गया है तो इसका मतलब है वारफेरिन की डोज कम करनी पड़ेगी, यानी वो ओवर डोजिंग वारफेरिन की हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लाज्मा कंसनट्रेशन को ही आप चेक करें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट को भी ले सकते हैं। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इसमें से कुछ इन्होंने यहाँ पे बता दी जिनकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक रिक्वायर प्रिसाइज मॉनिटरिंग, जिसमें जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन आ गई। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स आ गई जो कि सीजर मेडिकेशन है, नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है, पर्टिकुलरली फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, कार्बामेजिपिन हो गई। कैंसर कीमोथेरेपी भी हो गई हैं, तो इसको भी जो है हमें मॉनिटर करना पड़ता है। Pharmacokinetic and drug analysis services necessary for safe drug monitoring are generally provided by clinical pharmacokinetic services departments or clinical pharmacokinetic services in the hospitals like Ahan University Hospital में ये सर्विस मौजूद है जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ड्रग एक्सपोजर एंड ड्रग रिस्पॉन्स पे। तो ड्रग एक्सपोजर क्या है और ड्रग रिस्पॉन्स क्या है? ड्रग एक्सपोजर क्या है? डोज एंड मेजरमेंट ऑफ द ड्रग कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा, उसको हम कहते हैं ड्रग एक्सपोजर। उसमें यानी जो प्लाज्मा हो गया या और कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड हो गया, Cmax मैक्सिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन, Cmin मिनिमम प्लाज्मा कंसनट्रेशन, CSS स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम, तो वो AUC, ये इससे हमें ड्रग एक्सपोजर पता चलता है।
ड्रग रिस्पॉन्स कैसे पता चलता है? डायरेक्ट मेजर ऑफ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट इंक्लूडिंग बायोमार्कर्स एंड क्लिनिकल एंड पॉइंट्स। एक तो ये कि फार्माकोलॉजिक इफेक्ट के जैसे फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजिक इफेक्ट के जरिए हम कैसे पता करते हैं? सपोज दैट किसी को टूथेक है, दांत में दर्द है, आपने उसको पेन किलर मेडिकेशन दी, उसका जो है वो पेन रिलीव हो गया, तो ये फार्माकोलॉजिक इफेक्ट आ गया। कभी कभी बायोमार्कर्स से भी करते हैं हम। बायोमार्कर्स फॉर एग्जांपल किसी को एनीमिया है, हमने उसका सीबीसी कराया, हीमोग्लोबिन आया 8%, तो इसका मतलब है उसको एनीमिया है, हमने उसको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करा दिया। 1 महीने के बाद अब हमें चेक करना है कि इसका हीमोग्लोबिन इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बज़ाहिर देखने से तो हमें बॉडी यानी जो अपीयरेंस होगी पेशेंट उससे तो हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा होगा, तो हमें उसका सीबीसी दोबारा कराना होगा कि हीमोग्लोबिन कितना हुआ। तो वो जो हीमोग्लोबिन हमने कराया है वो दरअसल बायोमार्कर है, तो बाज़ दफ़ा हमें वो उससे भी हमें चेक करना पड़ता है कि क्या इंप्रूवमेंट है। इसी तरीके से अगर किसी के लेवर एंजाइम बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है लेवर डैमेज है, आपने कोई लेवर टॉनिक दिया कि उसके लेवर जो है वो हील हो, ठीक हो, तो उसके बाद आपने 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा लेवर एंजाइम कराए कि अब वो नॉर्मल रेंज में आ ही नहीं है। अगर आ गए तो ये लेवर एंजाइम भी बायोमार्कर के तौर पर हमें बताएंगे कि ड्रग का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा ड्रग रिस्पॉन्स इंक्लूड ए ब्रॉड रेंज ऑफ एंड पॉइंट, बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज ऑफ एंड पॉइंट हो सकते हैं। बायोमार्कर हो सकते हैं जिसमें मैंने 2 तो अभी बता दिया आपको, हीमोग्लोबिन का और लिवर एंजाइम लेवल का। एंड रेंजिंग क्लिनिकली रिमोट बायोमार्कर्स, रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी चेक कर सकते हैं टू प्रिज्यूम मैकेनिस्टिक इफेक्ट, एस इनहिबिटर्स का इफेक्ट टू पोटेंशियल और एक्सेप्टेड सरोगेट्स, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, लिपिड और कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर दी तो उससे ब्लड प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, लिपिड लोअरिंग एजेंट दिया तो उससे लिपिड लेवल कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है नहीं हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। एंड टू द फुल रेंज ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इफेक्ट रिलेटेड टू आइदर एफिकेसी और सेफ्टी, ये भी मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। शॉर्ट टर्म एफिकेसी तो यही है कि अभी जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव दी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया, तो ये शॉर्ट टर्म है कि अभी फटाफट इफेक्ट आ गया। लॉन्ग टर्म में ये है कि हम ब्लड प्रेशर की एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखें, ब्लड प्रेशर एक जो है क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहे तो इससे 4 मेजर एडवर्स इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। ब्रेन डैमेज हो सकता है यानी सेरिब्रल स्ट्रोक, हार्ट डैमेज हो सकता है यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से, और रेटिनल हैमरेज हो सकता है। और भी मुख्तलिफ साइट्स हैं जो डैमेज हो सकती हैं, लेकिन ये 4 मेजर साइट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर हम कोई एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं और हमने ये चेक कर लिया कि लॉन्ग टर्म फला ड्रग देने से ये जो 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका रिस्क भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी ड्रग के रिस्पॉन्स में काउंट होगा और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहलाएगा और सेफ्टी और एफिकेसी को प्रूव कर रहा है। Once we apply pharmacokinetic principles to determine the toxicity of drug, then this is called toxicokinetics and clinical toxicology. Toxicokinetic is the application of pharmacokinetic principles to the design, conduct and interpretation of drug safety evaluation studies. यानी ये हम toxicity studies कब करते हैं? जब ड्रग की सेफ्टी मालूम कर रहे हो। और किस में करेंगे? डोज रिलेटेड एक्सपोजर इन एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमन में ये स्टडी करना फॉरबिडन है, दुनिया भर में इसकी इजाज़त नहीं है क्योंकि ये अनएथिकल है। क्योंकि देखिए हम इसमें हाई डोज पर ऑलरेडी जाएंगे, हमें मालूम है कि हमें हाई डोज पे लेकर जाना है, तो फिर हम ह्यूमन पर ये हाई डोज, क्योंकि इस हाई डोज पे जाएंगे तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और उससे पेशेंट को हार्म भी हो सकता है, इसलिए टॉक्सिसिटी स्टडी ह्यूमन पे करना फॉरबिडन है। ग्लोबली हम ये एनिमल पे करते हैं। टॉक्साइकोकाइनेटिक डेटा एड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन एनिमल एंड एक्सट्रापोलेशन ऑफ द रिजल्टिंग डेटा टू द ह्यूमन। तो वही जो टॉक्साइकोकाइनेटिक्स का डेटा एनिमल से हमें मिलेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन हम लेंगे और फिर उस फाइंडिंग को एनिमल की हम एक्सट्रापोलेट करेंगे ह्यूमन में कि अगर हम इतनी डोज पर जा सकते हैं तो ह्यूमन में भी ये टॉक्सिसिटी कर सकती है। क्लिनिकल टॉक्साइकोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द बॉडी। तो ड्रग का एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस से जो टॉक्सिसिटी आ रही है वो क्लिनिकल टॉक्साइकोलॉजी कहलाती है। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ए ड्रग इन ओवर मेडिकेटेड पेशेंट may be very different from the pharmacokinetic of the same drug given in the lower therapeutic doses। बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो ड्रग जो कि ओवर डोजिंग में दी गई तो उसमें ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक कुछ और हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई ऑक्यूपेंसी ऑफ द रिसेप्टर्स साइट, और कुछ दूसरे रिसेप्टर से भी जाके बाइंड हो गई वो, और अगर नॉर्मल डोज में देंगे तो उसकी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक कुछ और होगी, तो उसकी वो डिटरमिन भी क्लिनिकल टॉक्साइकोलॉजी में किया जाता है।
इसके अलावा ड्रग के बिहेवियर की बात की जाए तो ड्रग का बिहेवियर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एट वेरी हाई डोजेस ड्रग कंसंट्रेशन में सैचुरेट एंजाइम इन्वॉल्व इन दी एब्जॉर्प्शन बायोट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिव सिक्रीशन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ड्रग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसकी बहुत डिटेल में हम आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। इन ड्रग का नॉन लीनियर बिहेवियर होगा। कॉमन टॉक्सिसिटी केसेस किससे हो सकते हैं? एसिटामाइनोफिन से, सैलिसाइलेट से, ओपिएट्स लाइक मॉर्फिन से, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट से। तो ये जो है वो इनकी स्टडी भी जो है वो की जाती है। तो इसके साथ हमने ये फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।